Now I want to talk about another aspect of the new covenant, अब मैं नई वाचा के एक और पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ, which was not possible in the old covenant. जो कि पुरानी वाचा में संभव नहीं था। And Jesus said that in John's Gospel and chapter 4. यीशु ने कहा यूहन्ना की सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, John 4, when he was talking to the woman of Samaria, यूहन्ना उसके 4 अध्याय में प्रभु सामरी स्त्री से बात कर रहे थे। he said to her, प्रभु ने उससे कहा, these amazing truths which are not found anywhere else in the New Testament. ये अद्भुत से सत्य जो कि नए नियम में कहीं भी नहीं पाया जाता। Verse 23 and 24. वाक्य 23 और 24, It's about true worship. ये सच्ची आराधना के बारे में है। This is the new subject I want to talk about in relation to the new covenant. नई वाचा के ताल्लुक में एक नया विषय है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। Worship in the new covenant. नई वाचा में आराधना करना। In the old covenant, you read in the Psalms, पुरानी वाचा में आप भजन संहिता में पढ़ते हैं, worship was clap your hands, raise your hands, and get the instruments and trumpets and all types of trumpets mentioned in towards the last few Psalms, and that's how the emphasis was on that. आराधना जो है वहाँ पे ताली बजाना, हाथ ऊंचा करना और तुरही फूकना, सारे संगीत के यंत्रों का इस्तेमाल करना। भजन संहिताओं के जो आखिरी जो भजन संहिताएं हैं, हम वहाँ पे ये देख पाते हैं, जोर उसी बात पर दिया जाता है वहाँ पे। But in the new covenant, पर नई वाचा में the emphasis is not on instruments. जो जोर है वो संगीत के यंत्रों पे नहीं है। We don't read about instrumental worship in the new covenant. Not against it, but हम नई वाचा में संगीत के यंत्रों के द्वारा आराधना करने के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। I'm saying that's not the main thing. मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुख्य बात नहीं है। And it's not with the hand and all that. I clap my hands, I raise my hands, it's all very good. और ये ताली बजाना या हाथ ऊंचा करना नहीं है। मैं ताली बजाता हूँ, हाथ ऊंचा करता हूँ, ये सब कुछ अच्छी बात है, But that's not the main thing. पर ये सबसे मुख्य बात नहीं है। The reason why I mention that is because a lot of what is called worship and praise today in Christendom, मैं ये इस कारण बोल रहा हूँ कि ज्यादातर जो आज की मसीहत में आराधना और स्तुति कहा जाता है, so many, particularly charismatic Pentecostal circles, खास करके जो करिस्मेटिक और पेंटिकोस्टल कलीसियाएं हैं वहाँ पे, it's all external. ये सब कुछ बाहरी रूप से होता है। It's not worship in the spirit. ये आत्मा में आराधना करना नहीं है। Jesus said here, the true worshippers, listen to this, John 4:23. यहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा, ध्यान दीजिए, यूहन्ना 4:23 में जो सच्चे आराधक हैं, The hour is coming, which वह समय आता है is the new covenant. जो कि नई वाचा का है। It's coming means it'll come on the day of Pentecost. It's not yet come. समय आता है यानी कि वो पेंतिकुस्त के दिन आएगा, वो अब तक आया नहीं है। The hour is coming, and now is means there's one person here already living that, that's Jesus himself. समय आता है वरन अब भी है, यानी कि अभी एक व्यक्ति है जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह है जो उसमें जी रहा है। And the true worshippers, so there are false worshippers and true worshippers. और सच्चे भक्त, यानी कि सच्चे भक्त भी हैं और झूठे भक्त भी हैं। The true worshippers will worship the Father in spirit. जो सच्चे भक्त है वो पिता की आराधना आत्मा में करेंगे And in truth. और सच्चाई से करेंगे। If you want to worship God, यदि आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, here is the verse. तो यहाँ पे ये वचन है, In your spirit and in truthfulness. आपकी आत्मा में और सच्चाई से। And such people, listen to this. This is the thing that challenged me years ago to understand what worship was. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक बात है जिसने मुझे बहुत वर्षों पूर्व चुनौती दी थी कि मैं आराधना के विषय में समझ पाऊं। The Father seeks for such people to be worshippers. Can you पिता ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। imagine Almighty God in heaven? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में है, looking down at Christians on earth, जो नीचे की ओर देखते हैं, इस पृथ्वी के जो मसीही हैं उनकी तरफ देखते हैं, and eagerly looking to see who will worship me
और उत्सुकता से ये देखते हैं कि मेरी आराधना कौन करेगा, in spirit and in truth. That's आत्मा में और सच्चाई से। the meaning of that. इसका मतलब यही है। I said, Lord, if you're looking for, let me be one of those मैंने कहा प्रभु यदि आप ऐसा ही देख रहे हो तो ऐसा एक व्यक्ति मैं होने दो who will worship you in spirit and in truth. जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। You don't have to play a single instrument. आपको एक भी संगीत के यंत्र बजाने की जरूरत नहीं है। Even the word hallelujah, which is frequently found in the book of Psalms, यहाँ तक कि जो हालेलुया का शब्द है जो बार बार भजन संगीता की पुस्तक में पाया जाता है, you never find it in the New Testament, आप उसे कभी भी नए नियम में नहीं देख पाएंगे, except in the book of Revelation where it says, hallelujah, Babylon is destroyed, hallelujah, Babylon is destroyed. प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उस पुस्तक को छोड़कर और कहीं भी नहीं आप उसे देख पाएंगे जहाँ पे कहा गया है हालेलुया बाबुल नाश हो चुका है, हालेलुया बाबुल नाश हो चुका है। Now, that's a good thing to say hallelujah for. तो ये हालेलुया कहने के लिए एक अच्छी बात है। Corrupt Christianity is destroyed. That's what Babylon is. जो भ्रष्ट मसीहत है उसका नाश हो चुका है, वही है बाबुल। But in the New Testament, the emphasis is on worship in spirit and in truth. परंतु नए नियम में आत्मा में और सच्चाई से आराधना करने के विषय पर जोर दिया गया है। So let's try and understand that. तो इसे हम समझने की कोशिश करें। Truth means it must be genuine, it must be real. सत्य यानी कि वो सच्चा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, It must not be words. सिर्फ एक शब्द नहीं हो। For example, our songs that we sing, उदाहरण के तौर पर हम जो गीतों को गाते हैं many of those songs are worship. उनमें से जो कई गाने हैं वो आराधनाएं हैं। But you need to ask yourself whether you mean it from your heart. पर आपको ये अपने आप से ये प्रश्न पूछना होगा कि क्या आप उसे अपने हृदय से समझकर बोलते हैं। I've often been convicted after singing a song. मुझे अक्सर मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ एक गीत को गाने के बाद। We worship you, O Lord, and at the end of the whole chorus, I think back, boy, हम आपकी आराधना करते हैं, ये पूरी पंक्ति गाने के बाद आखिर मैं सोचता हूँ who was I saying that to? मैं ये किससे बोल रहा था। The Lord says, where two or three are gathered together, there I am in the midst. प्रभु कहते हैं जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। And I wasn't thinking of the Lord. मैं तो प्रभु के बारे में नहीं सोच रहा था। My mind was wandering here and there, and I was, मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा था। I knew the tune by heart. मुझे वो धुन मन में याद हो चुका था, So I enjoyed the tune, but I wasn't talking to the Lord. इसलिए मैंने उस धुन का आनंद तो ले लिया पर मैं प्रभु से बात नहीं कर रहा था। When you sing a song like Thou art worthy, O Lamb, जब आप एक ऐसे गीत को गाते हैं जहाँ पे कहा जाता है मेमने आप ही योग्य हैं, Thou art worthy, O Lord, प्रभु आप ही योग्य हैं, are you conscious that Jesus is here and you're talking to him? पर क्या आपको इस बात का एहसास होता है कि प्रभु यीशु यहाँ पे है और आप उनसे बात कर रहे हैं। Many times I've been convicted. मुझे इस गलती का एहसास बहुत बार हुआ है। Oh, I just like the tune and I know the tune, so I just sing it. मुझे वो धुन पसंद है, मैं वो धुन को जानता हूँ तो मैं इसलिए ऐसे ही गा लेता हूँ। And if you're honest, you'll admit it too. यदि आप ईमानदार हैं तो आप भी इस बात का अंगीकार करेंगे। And we have to make an effort. I found I had to make an effort to remind myself. मैंने देखा है कि मुझे इस बात के लिए प्रयत्न करना होता है कि मैं अपने आप को प्रयत्न से याद दिलाऊं। I'm talking to the Lord now. He's here. Where 2 or 3 are gathered together, I'm here. मैं अभी प्रभु से बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं उनके मध्य प्रभु होते हैं। And when I say, Thou art worthy, O Lord, I want to speak to you, Lord Jesus. You're जब मैं कहता हूँ कि प्रभु आप ही योग्य है तो मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता हूँ। in our midst. I want to say to you, आप 2 या 3 लोगों के बीच में होते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ Thou art worthy. कि आप ही योग्य हैं। Not just sing a song along with everybody else. ऐसा नहीं कि सभी लोगों के साथ मिलकर ऐसे ही सिर्फ गीत को गा लिया हो, Let everybody else sing as they like. बाकी लोगों को जैसे उन्हें चाहिए वैसे ही गीत गाने दो। I want to talk to the Lord. मैं प्रभु से बात करना चाहता हूँ। I've said this before. When you're talking to somebody, you don't look here and talk to somebody here.
मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि जब आप सामने एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो जब बात करते समय आप उनको देखने की बजाय इस तरफ नहीं देखेंगे। And that's how it is. तो ये तो ऐसा ही है फिर। The Lord is here and we are thinking of somebody else and singing the tune. प्रभु यहाँ पे है, हम तो किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ही गीत गा रहे हैं। There is so much of, it's not real, it's not worship in truth. ये सत्य नहीं है, ये सत्य से आराधना करना नहीं है, It's unreal. ये असत्य है। And we have to discipline ourselves because for years and years and years and years we have gone the wrong way. हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा क्योंकि बहुत वर्षों से ही हम गलत मार्ग के द्वारा जा रहे हैं। Many habits that we have acquired, bad habits, बहुत सारी बुरी आदतें जो हमने प्राप्त किए हैं because your preachers in the churches you went to never taught you these things. क्योंकि जिन कलीसियाओं में आप गए हैं वहाँ के प्रचारकों ने आपको ये सिखाया नहीं है। We got to correct them. It'll take time to correct, bad हमें इन्हें सुधारना होगा, इसे सुधारने के लिए समय लग सकता है। habits that you have जो बुरी आदतें आपके पास है उसे सुधारने के लिए can sometimes take years to correct, but if you work on it, one day you'll come to worship in truth, where everything you say will be real. हो सकता है सालों लग जाएं इसे सुधारने के लिए, पर यदि आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे तब आप इस स्तर पे पहुंचेंगे जहां पे आपकी आराधना सच्चाई से होगा और आप जब जो कुछ भी तब कहेंगे वो सब कुछ सत्य होगा And you'll mean it. और उसे आप सच में समझ कर कहेंगे। Take a song like, Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. जैसे कि इस गीत को आप ले लीजिए जहाँ पे कहा जाता है कि प्रभु मेरा जीवन आप ले लीजिए और इसे अपने लिए पवित्र बनाइए। That's a song where you can tell the maximum number of lies. वो एक ऐसा गीत है जहाँ पे आप जितना हो सके उतना झूठ बोल सकते हैं। If you don't believe me, take that song sometime and read it. यदि आप मेरा विश्वास नहीं करते हैं तो कभी उस गीत को लेकर पढ़ें आप। Take my silver and my gold, not one mite will I withhold. Oh, मेरा चांदी और मेरा सोना ले लो, उसमें से एक कण भी मेरे पास रख ना छोड़ू मैं। oh. This looks like the greatest saint on earth singing. ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पवित्र संत इस गीत को गा रहा हो। Absolute lie. एकदम झूठ। Most people. अधिकतर लोग। You think all those people who sing that song really mean it? क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग उस गीत को गाते हैं तो क्या वो सच में ऐसे मानकर गाते हैं? Are they really telling Jesus, take my silver and my gold, not a mite will I withhold? क्या वो सच में प्रभु यीशु से ये कह रहे हैं कि मेरा चांदी और सोना ले लीजिए और उसमें से एक कण भी मेरे पास मैं रख ना छोड़ूं? Take my voice and let me sing always only for my King. मेरा आवाज ले लो और मैं सिर्फ और हमेशा मेरे राजा के लिए ही सिर्फ गीत गाऊं। Is that what we are teaching our children to sing? क्या हम अपने बच्चों को यही गीत गाने के लिए सिखा रहे हैं?